Welcome back to the study about the two witnesses. दो गवाहों के इस अध्ययन में फिर से हम स्वागत करते हैं। In the previous lesson, we saw why the concept of two witnesses is very important. पिछले सत्रों में हमने देखा कि ये दो गवाहों की विचार क्यों जरूरत है। And I gave you 11 reasons why or examples in the Bible concerning how God sends out people two by two. 11 उदाहरण और वजह मैंने बताया कि क्यों परमेश्वर दो दो करके गवाहों को या सेवा के लिए वो भेजते हैं। I'm sure you still remember them. जरूर आपने याद रखे होंगे। Now we are going to study further about who are the two witnesses. अब हम आगे और अध्ययन करेंगे ये जानने के लिए ये दो गवाही कौन थे। We read the scripture saying two witnesses. बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि दो गवाह। Now we already looked at two. हमने दो के बारे में पहले देख चुके हैं। Why two instead of three or four or five? 3, 4, 5 के बदले में क्यों दो करके हमने देखा। Now let's focus on the other very important word mentioned here. अगला जो महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर बताया गया है उस पर हम ध्यान देंगे। It is the word witnesses. और वो गवाही। It does not say two servants वहाँ पे दो सेवक करके नहीं कहा गया, or two angels दो स्वर्गदूत करके नहीं कहा गया, or two prophets दो भविष्यवक्ता करके लिखा नहीं गया है, or two apostles दो प्रेरित करके लिखा नहीं गया है, or two angels. दो स्वर्गदूत करके लिखा नहीं गया है। Rather, the scriptures very specifically uses the word witnesses. बल्कि वचन बहुत ही साफ तरीके से गवाही के रूप में, गवाहों के रूप में लिखा गया है। The word witness is a very special word. शब्द गवाह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। If the Bible has used a different word like servant or disciple, अगर बाइबल ने अलग शब्द इस्तेमाल किया होता कि चेले लोग या सेवक लोग, it would not have conveyed to us the wide scope of the ministry of the two witnesses. वो हमारे लिए उन दो गवाहों की जो विस्तार सेवा के विषय में हमें बताया नहीं जा सकता। The word witness in the Greek is martysin. ये यहाँ पे गवाही जो शब्द है उसमें यूनानी भाषा में मार्टिसिन करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। And it is from this word martysin that we get the word martyr. और ये मार्टिसिन शब्द से ही शहीद शब्द हमें मिला है। And martyr is a very common word that we know today as someone who has laid down their lives for the testimony. हम इन दिनों में ये शहीद शब्द को मतलब जानते हैं कि किसी ने अपनी जीवन किसी गवाही के लिए त्याग दिया हो। But let's focus on the word witness now. अब हम ये गवाही शब्द पर ध्यान देंगे। The Greek word martysin means यूनानी शब्द मार्टिसिन का मतलब है I or ear witness, मैं उसकी गवाही देता हूँ। which means they have seen it with their own eyes इसके मतलब उन्होंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है or they heard directly with their own ears. या नहीं तो सीधा अपने ही कानों से उन्होंने इस बातों को सुना है। You should not hear from a third source. आपको जो तीसरे व्यक्ति से सुनना नहीं चाहिए, That will not be considered a witness. उसे गवाही के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। You must have seen it with your own eyes. आप शायद उसे अपनी ही आंखों में देखे होंगे। Sometimes if an accident or a murder takes place, कभी कभार कोई विपत्ति हो जाती या किसी की हत्या हो जाता है, the police will call for eyewitnesses. पुलिस चश्मदीद गवाहों को बुलाते हैं। Those who have seen that incident with their own eyes. जिन लोगों ने उन घटना को अपनी ही आंखों में देखे हैं। But do you know in this modern world, आप जानते हैं इन वर्तमान के संसार में with modern technology, अभी वर्तमान की तकनीकों के द्वारा there's a different kinds of eyewitnesses everywhere. चारों तरफ में अलग अलग प्रकार की चश्मदीद गवाह है। That eyewitness of modern technology is called CCTV camera. वो वर्तमान की तकनीकी की जो चश्मदीद गवाह है वो सीसीटीवी कैमरा है। Now police don't need to call for any human eyewitness. अभी पुलिसों को कोई व्यक्ति की गवाही को बुलाने की जरूरत नहीं है। When an accident takes place, जब विपत्ति होने लगता है or a robbery takes place, या चोरी होता है or a murder takes place, या हत्या होता है or a chain snatching theft takes place, या आपकी गहने की चोरी होती है, they will gather evidence by looking at the CCTV cameras around that area. उस इलाके में लगी हुई सीसीटीवी कैमरा के द्वारा सबूतों को ढूंढते हैं, Because that is their eyewitness. क्योंकि वही उनका चश्मदीद गवाह है। So now let's come back to the concept of biblical
eye or ear witness. IM बाइबल आधारित ये आंखों या कानों द्वारा वो गवाही है। What should they be witnesses of? वो किस चीजों की गवाही होंगे? They should be witnesses to the power of God and of His resurrection power. वे परमेश्वर की सामत की और यीशु मसीह की जी उठने की सामत की गवाही होंगे। In Acts chapter 1 verse 22 we read of one incident. प्रेरितों काम पहला अध्याय के 22वें पद में घटना को हम पढ़ते हैं। When there was a replacement that needed to be done for the place of Judas Iscariot, जब यहूदा इस्करियोत के लिए उसके बदले में किसी को रखना जरूरी था, because there must be 12 apostles or disciples. क्योंकि वहाँ पे जरूरी था कि 12 प्रेरित लोग या चेले लोग होना है। Now there's only 11. अब सिर्फ 11 है, So they need to pick one to replace. इसलिए उनको एक को चुनना है उसके बदले में रखने के लिए। So the apostle Peter said like this, इसीलिए प्रेरित पत्रस ने इस प्रकार कहा, who qualifies to replace Judas Iscariot? कौन वो योग्य रखता है यहूदास के बदले में वहाँ पर आने के लिए? In Acts chapter 1 verse 22 we read, प्रेरितों काम पहला अध्याय 22वें पद में से पढ़ते हैं। beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह का हो जाए। Now look at this simple scripture where the apostle Peter outlines who qualifies to be a witness. यहाँ पे इस वचन की सरलता को देखिए कि पत्रस बताते हैं कि कौन वो गवाही हो सकते हैं। He must be someone who was with the crowd of disciples who saw the Lord Jesus from the beginning of his ministry till the time he arose from the dead. और वो चेलों के झुंड में से ऐसा व्यक्ति होने पाए जिन्होंने यीशु मसीह की सेविकाई की शुरुआत से लेकर उसके जी उठने तक का वो देखा हो, उसकी गवाही हो। By saying like that, the apostle Peter established a foundation for who qualifies to be a witness. इस तरीके से कहने के द्वारा पत्रस वो सिद्धांत को बना दिया है कि कौन जो है परमेश्वर के लिए गवाही हो सकते हैं। They must be an eyewitness to all the works of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हर एक कामों का चश्मदीद गवाह होना है। And they must be a ear witness to all his teachings. और वो यीशु की शिक्षा, सारी शिक्षाओं का सुनी हुई गवाही होना है। So that is the basic definition of what a witness is. और यही बुनियादी परिभाषा है गवाही के बारे में। With that foundation, let us go a little further. इस समझ के बुनियाद के द्वारा आइम और आगे बढ़ेंगे। Now concerning the two witnesses of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की वो दो गवाहों के बारे में Revelation chapter 11 verse 4 gives us another detail about the two witnesses. प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 4 पद और एक विवरण देता है दो गवाहों के बारे में। They stand before the God of all the earth. और वे सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। Now that definition is quite similar to what the apostle Peter called for a witness who saw all the works of the Lord Jesus. और ये जो परिभाषा गवाहों के विषय में है वो पत्रस के द्वारा कही गई उस परिभाषा के साथ मेल खाता है, उसे पूरा करता है कि यीशु मसीह की सारे कार्यों का आंखों देखी गवाही हो। Who is the Lord Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? The Lord God of heaven and earth. जो प्रभु परमेश्वर आसमान और पृथ्वी का। And for 3.5 years, the 12 disciples stood day and night with the Lord Jesus Christ and beheld all his works and were witnesses. 3.5 साल तक वो प्रभु यीशु के सामने उपस्थित थे और प्रभु यीशु मसीह के हर कार्यों को अपनी ही आंखों में देखे गवाही है। And Zechariah chapter 4 verse 14 tells us जकरिया 4 अध्याय उसके 14वां पद कहता है that the two witnesses are witnesses who stand before the Lord God of the whole earth. और ये दो गवाही ऐसे गवाह हैं जो परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी का उनके सम्मुख में खड़े रहते हैं। So they stand with the Lord God and watch all his works. वे परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, उनके सारे कार्यों को देखते हैं। They are his
eyewitnesses. वे ही उसके चश्मदीद गवाह है। And Habakkuk chapter 2 verse 1 tells us, हबाकुक 2 अध्याय उसके पहला पद कहता है, I will stand upon my watch and hear what he will speak to me. मैं वहां पर पहरेदारी पे खड़े होकर ध्यान दूंगा कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। So a witness hears directly what God will speak to them. और इसलिए गवाही जो परमेश्वर सीधा सुनता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। So these two witnesses stand literally in the presence of God and they see his works and they hear his words. इसलिए 2 गवाही वाकई रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं और परमेश्वर क्या करते हैं उन्होंने देखा है और क्या उन्होंने शिक्षा दिया है वो सुने हैं। And the third thing is God calls these two witnesses my witnesses. तीसरी बात यह है कि इन 2 गवाहों के बारे में परमेश्वर कहता है मेरे गवाह है। I want you to look closely at that one word called my. मैं चाहता हूं कि आप उस शब्द के बारे में करीब से ध्यान दें जो शब्द कहता है मेरा। When you say something is mine, जब आप कहते हैं कोई वस्तु ये मेरा है, it is your own special property. इसके मतलब आपकी व्यक्तिगत खास वो संपत्ति है। It is not somebody else. ये कोई और नहीं, A common thing shared by everybody. ये कुछ सामान्य चीज नहीं जो हर एक से हम बांटते हैं। It is your own personal. ये आपके निज व्यक्तिगत है। So these two witnesses are his own special servants. और इसलिए ये 2 गवाहें खास परमेश्वर के अपने सेवक हैं। They are very close to God वे परमेश्वर के बहुत करीब हैं and they are very specially trained by him वो खास रीति से उनके द्वारा प्रशिक्षण पाए हैं and specially prepared by him for such a time as this in the last days. और वो खास रीति से परमेश्वर के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं इन अंतिम दिनों के सेवकाई के लिए। Let me give you two quick examples. जल्द ही मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। Deuteronomy chapter 34 verse 6 tells us, व्यवस्था वर्ण 34 उसकी 6 पद कहता है, when the prophet Moses died, जब भविष्यवक्ता मूसा मरे थे, God himself buried him. परमेश्वर स्वयं उन्हें दफनाया And nobody knows where God buried the prophet Moses. और कोई भी नहीं जानता कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता मूसा को कहाँ दफनाए हैं। What does this show? ये क्या दिखाता है? He was specially hidden and kept away for something future. भविष्य के कुछ कार्य के लिए वो खास रीति से दफनाए गए हैं और छुपाए गए हैं। Secondly, दूसरा, 1 Kings chapter 19 verses 9 to 18 tells us, पहला राजक 19 अध्याय उसके 9 से लेकर 18 पद कहता है, when the prophet Elijah couldn't be shaken out of his discouragement and lethargy, जब भविष्यवक्ता एलिया अपनी निराश और अपनी आलसीपन से वो हट नहीं पा रहे थे, हिला नहीं पा रहे थे, God decided to put Elijah aside for a time परमेश्वर ने सोचा कुछ समय के लिए एलिया को हम अलग रखेंगे and another prophet was chosen to replace him. उनके बदले में एक और भविष्यवक्ता चुना गया। And 2 Kings chapter 2 tells us, दूसरा जात दूसरा अध्याय कहता है, the prophet Elijah was taken up to heaven. भविष्यवक्ता एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। Again we see the concept being hidden for something future. हम यहाँ पे देख नहीं पाते, वो विषय फिर से छुपाया गया भविष्य के लिए, कुछ बातों के लिए। If you look at a soldier, अगर आप एक सैनिक को देखेंगे, the soldier keeps his sword in a sheath. सैनिक अपनी तलवार को गिलाफ में रखते हैं। How long the sword is, how sharp the sword is, nobody knows because it's hidden in the sheath. वो तलवार कितना लंबा है, कितना नोकीला है, किसी को पता नहीं है क्योंकि वो उस गिलाफ के अंदर छुपा हुआ है। In the same manner, ठीक वैसा ही these two witnesses are God's special two servants. और ये 2 गवाही परमेश्वर के खास सेवक हैं। And they are standing before the presence of the Lord God of all the earth. सारे पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। They are his eyewitnesses watching all his works. वे परमेश्वर की चश्मदीद गवाह है कि वो सब कार्य जो प्रभु करते हैं। And they are his ear witnesses listening, standing in the counsel of God. और वे सुनी हुई गवाही है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रभु की सारी सलाह को सुनते रहते हैं। This brings our lesson to a close. ये हमारे पाठ को अंत में ले आया है We'll continue this next week. और इसे अगले हफ्ते जारी रखेंगे।